UPSC प्रिपरेशन इंग्लिशमधनं करत असताना इंग्लिशमधल्या नोट्स, इंग्लिशमधले माइंड मॅप्स, इंग्लिशमधली टीचिंग, इंग्लिशमधल्या PDF, PPT या सगळ्याच्या सगळ्यात ते सुद्धा ऑनलाईन तुम्हाला मिळणार आहे ज्ञानदीपच्या UPSC इंग्लिश मीडियमच्या बॅचमध्ये. ज्ञानदीपची इंग्लिश मीडियमची बॅच सुरू होते 16 जूनला. ही बॅच लाईव्ह कम रेकॉर्डेड असेल, म्हणजे जे तुम्हाला शिकवलंय हे लाईव्ह टीचिंग असेल आणि यासोबत जे काही लाईव्ह लेक्चर होईल, जर तुम्ही हे पाहू शकला नाही तर लगेचच्या लगेच पुढच्या 4 ते 5 तासामध्ये हे लेक्चर त्या ऍपवरती रेकॉर्डेड स्वरूपात तुम्हाला मिळणार आहे. मित्रांनो, ही बॅचची फीस आम्ही कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. UPSC इंग्लिश मीडियमच्या बॅचची फीस आहे फक्त 60,000 रुपये. ही फीस तुम्ही 5 टप्प्यांमध्ये म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 12,000 असं 5 टप्प्यांमध्ये तुम्ही ही फीस भरू शकता. तुम्हाला याचा नक्की फायदा होणार आहे. महत्वाची गोष्ट काय आहे तर या ऍपमध्ये, या कोर्समध्ये आम्ही कोणतेही व्ह्यूजचं लिमिटेशन टाकलेलं नाहीये. व्ह्यूजचं लिमिटेशन नाहीये, पण बेसिक गोष्ट अशी आहे तुम्हाला फोन नंबर किंवा तुमचं डिव्हाइस चेंज करता येणार नाही. मात्र व्ह्यूज तुम्हाला अनलिमिटेड आहेत आणि याचा ऍक्सेस तुम्हाला कम्प्लिटली 2 वर्ष असणार आहे. या बॅचचा नक्की फायदा घ्या. अत्यंत माफक फीस मधली बॅच आहे, ते पण UPSCच्या एक्सपर्ट फॅकल्टीज तुम्हाला शिकवणार आहेत. सो तुम्हाला सर्वांचं ज्ञानदीपच्या UPSC प्लॅटफॉर्मवर मनापासून स्वागत आहे. धन्यवाद. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम यू ऑल टू ओरिएंटेशन बिगिनिंग ऑफ हाऊ टू स्टार्ट विथ द सिव्हिल सर्व्हिस. तर इथं बेसिकली काय लक्षात ठेवायचं की जी नवीन पॅटर्नची एक्झामिनेशन आहे, ज्यात सगळ्याच्या सगळा सिलेबस UPSC सारखा केला गेलेला आहे आणि UPSC, तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की या परीक्षेची डिमांड काय आहे. खूपदा मी विचारतो की सिव्हिल सर्व्हिसेस, मग ती स्टेट सिव्हिल सर्व्हिसेस असो और सेंट्रल सर्व्हिसेस असो, कोणतेही सिव्हिल सर्व्हिसेस असो, या पर्टिक्युलर एक्झामिनेशन मध्ये, या एक्झाम मध्ये रिक्वायरमेंट काय, ही एक्झाम पास होण्यासाठी व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट. So people replies with various answers and their answers are normally common. Honesty, dedication, hard work, persistence, many words they use which are like values in your ethics, right? But my dear friends, why we fail to understand this examination is we do not understand or we do not take this civil services as an examination. We think that this particular thing is my life, is my dream, is my everything, and I'm going to do anything to get whatever I want through this particular examination. Clear? And this is where we learn or where we decide to fail in this examination. We do not prioritize our preparation. Prioritizing of your preparation is the key to get success in this examination. So the question comes, what I should do to clear this particular examination? What is the key ingredient to clear this examination? So in my opinion, if you want to clear this civil service examination, the most important ingredient that everyone you should know is answer writing. Yes, you heard me rightly. Answer writing is the most important thing if you want to clear this examination. Answer writing. Exactly. This is the thing where we are going to work upon. Now, before moving forward, before going towards answer writing, I want to tell you the plan of our batch that we are going to work over here. Correct? What will be the plan of the batch? How we are going to run through this particular batch? What shall be the schedule of our mains? What shall be the schedule of our prelims? And what all benefits that you are expected to get from this batch I am going to discover over here. Now, first thing regarding this answer writing, we'll come to answer writing later on. Before that, I want to tell you what shall be the academic plan of this particular batch. In simple term, what I want to tell you is that we are going to start this batch from the month of June. Barabar. So June to December shall be the phase 1 of your preparation, and January to April end. Normally I would use word May end, but January to April end shall be the second phase of your preparation. Now, from June to December, what we are going to do, we are going to work on 2 important things. First, we'll teach you basics of this syllabus. Also, we'll teach you mains examination. So, we are getting one point very clear. From June to December, we are going to focus on basics and mains. Correct? Now, what shall be the pattern? Every day, you have to come at 7th. Every day, there shall be a lecture of 1 hour. Every day, there shall be a lecture of 1 hour. 1 hour lecture shall be dedicated for the Samarpan. Now, what is the Samarpan? So, basically, Samarpan is
USP of Gnandeep Academy. Samarpan is, in simple term, daily. Actually, it is not daily, it is for 4 days a week or 3 days a week, but it is daily answer writing come evaluation program. Every day you have to write a question, and every day we will be evaluating your one question every day. So basically, we will be having 1 hour of daily answer writing. First point. From June to December, we will be having 1 hour for answer writing, then 1 hour for your GS, and another again 1 hour for your GS. So basically, we will be having 3 lectures from the month of June. Clear? June to December, we are going to focus on basics. We are going to focus on mains. And in this first 1 hour of your everyday shall be Samarpan, which is daily answer writing program. It is not only answer writing, plus it is answer evaluation program also. Daily, we will be evaluating your one answer daily, that too in an online format. So this is the most unique program that Gnandeep Academy presents in front of you, so that you can have a very good answer writing. Clear? Now, after December, in the month of December, we are going to have another interesting thing. In the month of December, we are going to have 0th attempt. What is 0th attempt? Basically, you are going to appear for your first attempt in the month of May or June of 2026. Before that, we are going to have a rehearsal of entire examination which is being conducted by your state public service commissions, or which are being conducted by UPSC. So we are going to have a regional language paper, then we are going to have English paper, GS 1, 2, 3, 4. So in this 0th attempt, we are going to have a complete rehearsal of your actual main examination. Here we are going to have one paper of your regional language, that could be Marathi, Hindi or any other. Second paper will be of English. Every one of you know that these 2 papers are just only qualifying papers. Marks of these papers are not counted for your final merit. Then we will be having GS 1, 2, 3, 4. Then we will be having options 2 papers, option 1, option 2, and also we will be having essay paper. So this 0th attempt shall be conducted from 20th of December till 26th of December. June to December, and in last 2 weeks or last 10 days of your December month shall be completely dedicated to have a full-fledged answer writing. This is first part of your preparation of your entire civil services. Now coming to the prelims part, from January to the month of April end, barabar hai? April end tak. From January to April end, we are going to focus completely on prelims. Why? Because by the month of May or June, you are going to have your UPSC prelims, then your Indian Forest Service prelims, then your MPSC prelims, then your what we can say Maharashtra Agricultural Service, Maharashtra Forest Service examination, then your NABARD examination, then your RBI examinations. All these examinations are due in the month of May and June. We are going to work on the prelims from the month of January till April end. We are focusing complete on prelims, and here what shall be the pattern? There will be lecture, then there will be test. Test will be of MCQ. It means from the month of June to December. See, from the month of June to December, we are going to focus on writing test, written test. But from the month of January to April, we are going to focus on what? We are going to focus on MCQ test. You will have lecture, then you will get a test, lecture, then test, lecture, then test. So, and these tests will be on whatever being taught to you from in this particular lecture. Clear? So, this is the pattern that we are going to work from the month of June till the end of May. We are going to prepare you completely for this examination from the perspective of civil services, so that you should be ready to write any paper, any exams. जो तुम्हाला जे काय वाटतं सगळं तुम्ही काय करू शकता, या टाइम पिरियड मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने लिहू शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी प्रिपेअर करणार आहोत जून महिन्यापासून ते टिल द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जानेवारी, till the end of the month of May. Now coming to our main focus, what this examination is made of. Basically this examination of answer writing.
इथं तुम्हाला हा डाऊट असेल की सर मी कोणत्या ग्रॅज्युएशनचा आहे, कसा आहे, मला 10वीला एवढे पर्सेंटेज होते, 12वीला एवढे पर्सेंटेज होते, मला एवढं सगळं येतं, मी या गावचा आहे, मी एवढा हुशार आहे, मी एवढा मेरिटोरियस आहे, या सगळ्या गोष्टींची UPSC और MPSC और एनी स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशनला काहीही घेणं देणं नाही. या सगळ्या एक्झामिनेशन्स मध्ये हे पक्क लक्षात घ्या, या सगळ्या एक्झामिनेशन्स मध्ये तुम्ही किती हुशार आहात किंवा कोण आहात यापेक्षा व्हॉट यू हॅव रिटन इन युअर आन्सर शीट is more important than anything else. And that's why I'm saying answer writing is key to clear this examination. Then comes another important aspect. Agreed, sir. What you are saying is correct that we must focus on answer writing. But what in answer writing? Please clear us. Now, in answer writing, what is the key component which plays a crucial role? And in answer writing, the key component which plays a crucial role is your language. You will have to work on language. Yes, very true. You have to work on your language. Language in terms of content. Language in terms of presentation. See, language में कौन से एस्पेक्ट पे आपको काम करना है? आपके कंटेंट पे काम करना है, बराबर है. आपके प्रेजेंटेशन पे काम करना है, बराबर है. थर्ड थिंग, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो पे काम करना है. देन आपके सेंटेंसेस पे काम करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंग्वेज में आपको आपके वर्ड्स पे भी काम करना है एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन पे भी आपको काम करना है. दैट्स आई एम सेइंग दैट इन दिस पर्टिकुलर केस दिस एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ आंसर राइटिंग, एंड इन दिस आंसर राइटिंग the most crucial part which is going to decide your score, which is going to decide your rank, is language. Then comes the question, sir, how should I work on the language? I have a very simple solution. If you want to work on language, don't go for bigger classes of language. Go for one very simple thing. Make a simple notebook for the language. Make a notebook. And in this notebook, try to write what? Try to write good words, then good sentences, then your good language, and the thing that you can put in your answer. Everything should be put in this your notebook. Make one notebook. I will tell you power of small thing. If you try to mug up 3 or 4 good words every day, good words, basically we use layman's words while speaking. We use common words which do not have much significance in these examination. These examination demand that you should have good words, words which are very specific, words which are very scientific, technical, and words which carry weight along with them. These words are very, very important. So you should focus more and more on what? You should focus on your language. Language, basically you should make a notebook for language which contain good words, good sentences, good language, good answer writings, things you should have in your words. If you try to mug up 3 words a day, just try to imagine 3 words per day. For reading these 3 words, you will take just only 1 minute. If you read these 3 words which you want to mug up in the morning, in afternoon, in evening, and before going to sleep, you are going to spend 4 minutes for these 3 words. You are going to spend 4 minutes for mugging up these 3 words. बराबर है? आप खुद पे 4 मिनट दिन का दे सकते हो क्या? पक्का दे सकते हो. यस, दे सकते हो, क्योंकि ये 4 मिनट आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं. नाउ इफ यू ट्राई टू मग अप 3 वर्ड्स अ डे, आप सोचो 1 महीने का कितना होगा? 3 into 30, ये हो गया 90 वर्ड्स अ मंथ. इंटू 12 मंथ्स अगर हमने सोच लिया तो 12 अष्टवर्ष ये हो गया लगभग 1000 प्लस वर्ड्स. इसका मतलब ये है कि अगर आपने दिन में सिर्फ 3 वर्ड्स भी याद कर लिए जिसके लिए आपको 4 मिनट लगेगा, you'll spend just only 4 minutes. So in these 3 words and 4 minutes a day, you can remember almost around 1000 words a day. And that's why I'm saying it is very easy to clear this examination if you are professional in your approach. If you know what is demand of the examination, I tell you, you will definitely clear this examination. But the only thing, you should be very professional in your approach.
First thing of professionalism, what it says, this civil services is an examination of answer writing, and to have good answer writing, you should focus more on what? You should focus more on language. From where you should prepare language, or how to prepare language, or what is the most important thing for preparing this language? Make a notebook for remembering or for mugging up the word. First thing. Second thing, what you should do? Second thing, you should start reading a newspaper. But I will tell you, do not run behind reading newspaper for 2 or 3 or 4 hours a day. No need. Read any one good newspaper which will help you in building your language. Now, if you look at the good English newspapers, we have 3 options. One is The Hindu. Second is Indian Express. And third one is Times of India. We have these 3 newspapers. In English, we are thinking about language only. Now, when I come across many students, I realize that they tell, sir, Hindu की language बहुत ही difficult है. Hindi is very difficult paper. हिंदू हमें comprehend नहीं होता है. उसके comparison में, sir, Indian Express का language और Times of India का language is very easy. Is it so? No, my dear friends. Here you are at a mistake. If we compare these 3 papers, the Hindu, Indian Express and Times of India, out of these 3 papers, हिंदू की लैंग्वेज सबसे इजी है. बट हिंदू का जो कंटेंट है, दैट कंटेंट इज नॉट नोन टू मेनी ऑफ द एस्पिरेंट. हिंदू टॉक्स अबाउट सोशल इश्यूज, political, economical issues. Hindu talks about vulnerable section. Hindu talks about center-state relations. Hindu talks about many such issues which are very, very important for your syllabus. Hindu is not what we can say everyday wala paper. उसके कंपैरिजन में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, अपने आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है वो हर चीज के बारे में वहां पे क्या होता है, डिस्कशन होता है, न्यूज होता है. सो अपने को क्या होता है कि व्हेन वी रियलाइज दैट दिस न्यूज इज फ्रॉम आवर विसिनिटी, दिस न्यूज ये अपने सराउंडिंग वाला है, तो अपने को न्यूज जल्दी कॉम्प्रेहेंड हो जाता है. एंड देन वी थिंक कि लैंग्वेज समझ में आ गया, नहीं आ गया, न्यूज कॉम्प्रेहेंड हो गई, देन वी थिंक कि हाँ 2 पेपर इजी है, ये वाला पेपर डिफिकल्ट है. लेकिन ऐसा नहीं है. Again, I am telling you, if you want to clear this examination as early as possible, read the Hindu only, which fulfills demands of our examination. Indian Express and Times of India do not fulfill our examination demand. हाँ, those people who are having political science as their optional, उन लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत बेनिफिट का हो सकता है. लेकिन if you look at your overall civil services preparation, for entire civil services or this competitive examination preparation, you have to focus on the Hindu. हिंदू में भी क्या पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? आप देखो ना, हर कोई न्यूज, when you go through that particular news, that news is not written from the perspective of your examination. Like recently there was a crash of Air India. तो उसमें क्या दिया होता है, एयर इंडिया के 2 इंजन थे, 2 इंजन में कितना गैलन फ्यूल भरा हुआ था, वो कितनी हाइट पे गया था, कहां से गिर गया, फिर वो टावर पे उसने कौन सा वर्ड्स बोला था, मेडे का मतलब क्या है. सो दीज थिंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमीशंस. व्हाट यू शुड फोकस ऑन, you should focus on the crux of that news. Remembering factual things, factual numbers is not going to help you to clear this examination. You have to focus on crux of the examination. What is the crux? So that's why what I am telling you, आपको ये जो द हिंदू है, हिंदू पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, लेट अस से ये एडिटोरियल वाला पेज है, ये बीच वाला फोल्ड है यहाँ पे. ना इस साइड में एक एडिटोरियल के ओपेड वाला पेज या इस बाजू में होता है, बराबर है. इस साइड में ये 2 कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे हिंदू का लोगो होता है, बराबर, ये 2 कॉलम है. नाउ रिमेंबर, दोज हु वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड दोज हु वांट्स टू हैव अ वेरी गुड लैंग्वेज, दे मस्ट रीड दीज 2 कॉलम्स कंपल्सरीली. आपको ये 2 कॉलम पढ़ना ही पढ़ना है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है. आपको ये 2 कॉलम्स पढ़ना ही पढ़ना है, इस पे अपने को कोई भी ऑप्शन नहीं है. 2 कॉलम आपको पढ़ना है. फिर यहाँ पे एडिटोरियल होता है, बराबर है, हिंदू में यहाँ पे एडिटोरियल होता है. तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अगर यहाँ का एडिटोरियल अपने सिलेबस के हिसाब से है तो आपको ये पढ़ना है. ये एडिटोरियल अगर आपके सिलेबस के हिसाब से तो आपको पढ़ना है. इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको ये एडिटोरियल नहीं रीड किया, स्टिल इट इज परफेक्ट, नो इश्यू. इसके नीचे होता है लेटर्स टू एडिटर. लेटर्स टू एडिटर,
ये आपको हर दिन पढ़ना है, एवरीडे। व्हाई? सी दीज टू कॉलम्स एंड लेटर्स टू एडिटर is a must read for every civil service aspirant every day। आपने एक दिन का खाना नहीं खाया तो भी चलता है, लेकिन आपको ये दो, ये वाला कॉलम और लेटेस्ट एडिटर, ये आपको कंपलसरी पढ़ना है। इसके लिए अपने को कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये अपने को पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है। बेसिकली ये दो कॉलम क्यों पढ़ना है, ये दीज टू कॉलम्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी निकाल लेता हूं। So, ये दो कॉलम क्यों पढ़ना है? बेसिकली दीज टू कॉलम्स आर रिलेटेड विथ करंट इवेंट्स। अभी क्या चल रहा है, इस पे जो ओपिनियन है वो ओपिनियन यहाँ पे आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड ओपिनियन यहाँ पे दिया हुआ है। दैट्स व्हाई ये दो कॉलम क्या करेंगे, आपका एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव डेटा यहाँ पे दे देंगे। दैट विल बी रिसर्च डेटा। ये जो यहाँ पे जो डेटा मिलेगा, इट विल बी अ रिसर्च डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। दैट्स व्हाई दिस टू कॉलम एंड लेटर्स टू एडिटर, दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओपिनियन अबाउट करंट इवेंट इश्यूज। ये आपको पर्सपेक्टिव्स देगा कि आपका पर्सपेक्टिव कोई चीज के बारे में क्या होना चाहिए। ये आपको अच्छा वाला लैंग्वेज देगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको हेल्प करेगा हाउ टू थिंक सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दी इंटरव्यू। बराबर है? सो फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। अगर अपने को ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो लैंग्वेज पे काम करना है। लैंग्वेज पे काम करने के लिए पहला चीज मैंने बताया, आपको एक नोटबुक बनाना है लैंग्वेज के लिए। सेकंड थिंग आई एम सेइंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन न्यूज़पेपर। विच वाला न्यूज़पेपर? द हिंदू पे ही आपको फोकस करना है, दूसरा कोई भी पेपर आपको नहीं पढ़ना है। इफ एट ऑल यू वांट टू रीड एनी अदर पेपर यू हैव चॉइस, बट आई वुड से that the paper which fulfills demand of your syllabus, the paper which fulfills the demand of your answer writing is the only the Hindu newspaper। बाकी कोई भी न्यूज़पेपर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सके। इसके साथ आप जहां पे भी रहते हो वो रीजन वाला कोई भी एक रीजनल न्यूज़पेपर आपके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है। लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन महाराष्ट्र, you should read paper in Marathi. If you are living in Andhra or Telangana, you should read it in Telugu. If you are living in Tamil Nadu, you should read it in Tamil. बट बेसिकली रिमेंबर आपको रीजनल लैंग्वेज में भी ये पेपर आपको पढ़ना ही है। सो इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये सबसे जरूरी चीज है। सो ये पहला चीज हो गया आपको क्या करना है। अभी इसके साथ हमने क्या देखा, लैंग्वेज के लिए एक नोटबुक बनाना है, दूसरा द हिंदू पे काम करना है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको फोकस करना है एक सबसे बड़ी चीज पे, वो है योजना मैगजीन। वो क्या है? दैट इज अ योजना मैगजीन। योजना मैगजीन आपको पढ़ना है एवरी डे। व्हाई योजना मैगजीन पढ़ना है? फर्स्ट थिंग, योजना मैगजीन इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। बराबर है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन करता है। सो इट शोज प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर एरियाज वेयर गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड। दूसरी चीज, अगर आपने कब से जून 2025 से जून 2026 तक सभी के सभी का योजना अगर अच्छे से देख लिया, समझो कोई योजना आपका पढ़ के नहीं हुआ, यू आर नॉट एबल टू रीड फ्यू योजना बट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द योजनास फ्रॉम June 25 to June 26, then there is surety that you will know at least 3 to 4 topics of essay. Remember this thing, out of 8 essay topics, 3 to 4 topics are compulsorily from Yojana magazine only. Also, Yojana magazine is a very good source of factual data which you can use in your examination. Also, Yojana magazine gives you idea about what are the current issues that we are having, suffering, what are the problems that we face, then what are the solutions. So Yojana magazine is a kind of one-stop solution for many of your current event based questions. इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि योजना मैगजीन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक है, कॉलेज है, कुछ भी है, तो इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू रीड योजना मैगजीन नीटली, तो सिर्फ एक चीज आपको करना है, हर एक आर्टिकल है, एवरी आर्टिकल, हर आर्टिकल में के 4 to 5 पैराज ऑफ बिगिनिंग एंड 4 to 5 पैराज ऑफ एंड, ये आपको कंपलसरी पढ़ना है।
जैसे मैंने बोला ना कि लेटर्स टू एडिटर आपको कंपलसरी पढ़ना है, उसी हिसाब से योजना मैगजीन वाला भी 4 to 5 पैराग्राफ ऑफ बिगिनिंग एंड 4 to 5 पैराग्राफ ऑफ एंड, ये आपको हर दिन पढ़ना है। और ये किस लिए पढ़ना है, ये 4 से 5 पैराग्राफ जो बिगिनिंग वाला है हर एक आर्टिकल वाला, दे विल हेल्प यू टू राइट गुड इंट्रोडक्शन एज वेल एज ये जो आखिरी वाला 4 या 5 पैराग्राफ है, दे विल हेल्प यू टू राइट गुड कंक्लूजन। दैट्स व्हाई you should focus more and more on Yojana magazine. So we are getting first thing civil services आंसर राइटिंग। इसमें आंसर राइटिंग के लिए लैंग्वेज जरूरी है। लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक नोटबुक बनाना है, दूसरा द हिंदू न्यूज़पेपर पे फोकस करना है, और तीसरी चीज आपको योजना मैगजीन पढ़ने के लिए लेना है। यू हैव टू गो फॉर योजना मैगजीन, ये आपको सबको ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद शुरुआत कहां से करनी है, फ्रॉम वेयर आई शुड गो फॉर और व्हाट आई शुड डू। सो सबसे पहली चीज क्या करना है, फर्स्ट थिंग अपना विल गो सीक्वेंस वाइज। सो पहला हमने क्या देखा, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ आंसर राइटिंग, बराबर। सो इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए फोकस्ड ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया, 3 फॉर्मूला बनाया है। एक है द हिंदू वाला, दूसरा है नोटबुक वाला, तीसरा है योजना मैगजीन वाला। सो ये तो अपना क्लियर हो गया। अभी तीसरी चीज अपने को क्या करनी है, के लिए एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, यू विल गेट अ बुक फ्रॉम ज्ञानदीप एकेडमी, इट्स नेम इज कोडेड डिकोडेड। नेम ऑफ द बुक इज कोडेड डिकोडेड। कोडेड डिकोडेड क्या वाला किताब है, कोडेड डिकोडेड इज अ बुक व्हिच गिव्स यू एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। कोडेड डिकोडेड नाम का पीवाईक्यूज वाला एक बुक है। आपको ये पीवाईक्यूज वाला किताब आपको पढ़ना है। पीवाईक्यूज वाले किताब में क्या दिया है कि हर एक जो क्वेश्चन पे जीएस का सिलेबस है अपना, GS1, GS2, GS3, GS4। सो GS1 में कौन सा सब टॉपिक है, वो कौन से वाले सब टॉपिक पे कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन दिस कोडेड डिकोडेड बुक। अब तक महाराष्ट्र वाला जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ एमपीएससी में अब तक ऑब्जेक्टिव वाला एग्जामिनेशन चल रहा था। इस वजह से अपने महाराष्ट्र में कोई भी आपको पीवाईक्यू वाला किताब नहीं मिलेगा जहां पे आपको दिस रिटर्न वाला क्वेश्चन मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विल एक्ट एज अ रेफरेंस टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो लोग यूपीएससी या स्टेट सर्विस एमपीएससी प्रिपेयर करे, वो दोनों लोगों के लिए कोडेड डिकोडेड हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे कोडेड डिकोडेड क्या है, तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाला एक किताब है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ इसका रीडिंग करना है। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टोन ऑफ द क्वेश्चन। टोन ऑफ द क्वेश्चन मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस, एनालाइज, इवेल्युएट, डिस्क्राइब, एल्यूसिडेट, सब्सटेंशिएट, जस्टिफाई, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। देन अगेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लोकस ऑफ द क्वेश्चन, मतलब सिलेबस के कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप देखो। लोकस भी आपको यहाँ पे पता करना है। सो कोडेड डिकोडेड किस चीज का है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का है। सिर्फ गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक, नो नीड टू सॉल्व, ये बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। टोन ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड, लोकस मतलब सिलेबस के कौन से पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको समझना है। एंड यू मस्ट नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपके ध्यान में आ जाएगा व्हेन यू गो थ्रू दिस एंटायर कोडेड डिकोडेड बुक। सो तीसरी चीज आपको क्या करना है, कोडेड डिकोडेड किताब आपको पढ़ने को लेना है। और एक सवाल विच कम्स टू योर माइंड, शुड आई रीड दिस कोडेड डिकोडेड बुक इन वन गो, मैंने ये सारा का सारा किताब एक ही गो में पढ़ना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो किताब है, whenever you get bored, just open the book, open any page and try to read the question that are being asked on that topic. और अगर आपको बहुत ज्यादा बोर हो रहा है तो ओपन इथिक्स वाला साइट आप ओपन कीजिए, और इथिक्स वाले साइट में जितने भी केस स्टडीज है, ट्राई टू गो थ्रू ऑल द केस स्टडीज। आप सभी का सभी वाला केस स्टडीज गो थ्रू कीजिए, यू विल कम टू नो विच काइंड ऑफ केस स्टडीज आर बीइंग आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड अपने को कैसे सोचना है, क्या सोचना है, किस चीज पे फोकस करना है, ये अपने को वहां पे पता चल जाएगा। तो थर्ड थिंग, यू हैव टू गो फॉर कोडेड डिकोडेड। फोर्थ थिंग, चौथी बात, अपने को क्या करना है, आपको सिलेबस का डिकोडिंग करना है।
सिलेबस डिकोडिंग। लेकिन क्या है, हमने यहाँ पे ज्ञानदीप एकेडमी में ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड करके रखा हुआ है। यू विल गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ एंटायरली डिकोडेड सिलेबस। तो आपको सिलेबस को डिकोड नहीं करना है, ये काम हमने आपका खत्म कर दिया है कि आपका वो काम इजी हो गया है, आपको यहाँ पे सिलेबस डिकोड करते नहीं बैठना है। विल गेट अ रेडीमेड सिलेबस डिकोडेड कॉपी। तो आपका आपका काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। यहां से आपका काम एक्चुअल में शुरू होता है। यहां से आगे आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को इंटरनलाइज करना है। यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस का इंटरनलाइजेशन। Internalization of syllabus. Now, what is meaning of internalization? In simple term, to understand the syllabus in your own language is known as internalization. Or in another language, conceptual clarity. To have conceptual clarity is known as syllabus internalization. आ गया समझ में? सिलेबस का इंटरनलाइजेशन करना है मतलब क्या करना है, सिलेबस के हर एक पॉइंट को आपको कंसेप्चुअली क्लियर करके लेना है। एंड कंसेप्चुअली क्लियर करके लेना है, इसका मतलब ये है कि आपको हर एक कंसेप्ट को खुद के लैंग्वेज में समझ के लेना है। खुद के लैंग्वेज में आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट आना चाहिए। ये यहाँ का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा यहाँ का डिमांड है। तो यहाँ पे सिलेबस का इंटरनलाइजेशन करना है। कैसे करना है? तो सबसे बड़ी चीज, यू हैव टू मेक फर्स्ट फंडा, you have to make 7 notebooks. आपको 7 नोटबुक बनाना है, 7 नोटबुक। हाँ, you have to make 7 notebooks. For what? एक नोटबुक होगा, it will be for essay. Then GS1, GS2, GS3 and GS4 जनरल स्टडीज का ये 4 नोटबुक हो गया। देन ऑप्शनल का पेपर 1, ऑप्शनल का पेपर 2, ये ऑप्शनल का आपका 2 नोटबुक हो गया। ये टोटल हो गया 7 नोटबुक्स। ये क्या हो गया? दीज आर 7 नोटबुक्स। यू हैव टू मेक 7 नोटबुक्स। सी रिमेंबर वन थिंग, जब तक आप बच्चा बन के नहीं पढ़ोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सब आता है, वो मुझे सब आता है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको एक छोटा बच्चा बन के वो उसी शिद्दत से पढ़ना है, so that you will be able to write answers in a nice manner. तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, चौथा पॉइंट है सिलेबस डिकोडिंग। ये आपको क्लास से मिल जाएगा, इसलिए सिलेबस को अपने लैंग्वेज में समझना है। इसलिए आपको क्या करना है, 7 नोटबुक बनाना है। These 7 notebooks are for syllabus internalization as well as these 7 notebooks are for value addition. अभी क्या करना है, सिलेबस करना है। लेटेस्ट से आपने GS1 के लिए एक नोटबुक बना दिया, तो GS1 में क्या क्या पॉइंट होता है? इसमें होता है आर्ट एंड कल्चर, बराबर है। दूसरा होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। देन उसके बाद होता है लेटेस्ट से एंशिएंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। ये हो गया GS1 वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन। दूसरा है ज्योग्राफी वाला पोर्शन, तीसरा है सोसाइटी वाला पोर्शन। अभी आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो सिलेबस है ये लेना है। समझो आर्ट एंड कल्चर में टोटल 10 वर्ड्स है। समझो आर्ट एंड कल्चर में टोटल कितना वर्ड्स है? देयर आर 10 वर्ड्स है, 10 वर्ड्स है जो आपको पता नहीं है। जो वर्ड्स आपको पता है उसके बारे में छोड़ दो, लेकिन 10 वर्ड्स है जो आपको पता नहीं है। फॉर दीज 10 वर्ड्स टेक 10 पेजेस, हर एक पेज। समझो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आर्ट लिखा। दूसरा पेज लिया, यहाँ पे आपने कल्चर लिखा। देन यहाँ पे आपने तीसरा पेज लिया, यहाँ पे आपने क्या लिखा, कास्ट सिस्टम लिखा। चौथा पेज लिया, यहाँ पे आपने लेटेस्ट से अर्थक्वेक लिखा। बराबर आपके सिलेबस वाला पॉइंट। ऐसे हर एक पेज पे एक एक वर्ड लिखना है। एंड आफ्टर दैट राइट डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड इन 25 to 30 वर्ड्स। क्या करना है, वो जो वर्ड है इसका डेफिनेशन लिखना है इन 25 to 30 वर्ड्स। कौन सा वाला डेफिनेशन? जो डेफिनेशन आप एग्जामिनेशन में अगर उस वर्ड पे आंसर आ गया, देन यू आर गोइंग टू पुट दैट डेफिनेशन, वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है। ऐसे सोचो आपके पास 7 नोटबुक्स है, हर एक नोटबुक में कम से कम 250 पेजेस होना चाहिए। 50 पेजेस वाला नोटबुक नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कम से कम 250 पेजेस वाला नोटबुक चाहिए। और जो वर्ड इन दैट पेपर सिलेबस आपको लगता है कि ये अलग वाला वर्ड है, ये मुझको समझ में आना चाहिए, तो उस वर्ड का 25 to 30 वर्ड में
प्रमाण भाषा में, मतलब जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाला डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद पूरा साल भर वो वर्ड पे जितना भी एग्जाम्पल आता है, जो कोई भी केस स्टडी आता है, कहां से, जो आपके डे टू डे रीडिंग में, वो यहाँ पे लिखना है। इसको भरना नहीं है। अगर आपको लगे कि लिखना जरूरी है तभी उसमें लिखना है, अदरवाइज उसमें लिखना नहीं है। इसमें हर चीज किताब वाली नहीं लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, आपका मीनिंग लिखना है एंड यूनिक केस स्टडीज लिखना है। यूनिक, जो सबसे अलग हो, जो सबसे डिफरेंट हो, ऐसा यूनिक वाला केस स्टडी आपको यहाँ पे इसमें पुट करना है। यूनिक वाला केस स्टडी इसमें आपने डाल दिया। ये ऐसा क्यों करना है, ये अपने को करना है, इसका मेन पर्पस है वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो फॉर वैल्यू एडिशन। अपने को क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। मतलब क्या, व्हाट इज दिस वैल्यू एडिशन? सो बेसिकली वैल्यू एडिशन हम कब करते हैं, व्हेन वी आर एट पार विथ ऑल अदर स्टूडेंट्स। जब हमारा प्रिपरेशन और कम से कम 20 से 25 हजार अपने वाले दोस्तों का प्रिपरेशन सेम लेवल पे है, वी ऑल आर ऑन सेम लेवल, एवरीवन नोज एवरीथिंग, हर किसी को हर चीज आता है, तो उस टाइम पे अपने को वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है। मीन्स व्हाट, इन सिंपल टर्म अपने को हर टाइम यही सोचना है, व्हाट डिफरेंट थिंग, व्हाट डिफरेंट एग्जांपल, व्हाट डिफरेंट केस स्टडी आई शुड राइट इन माय आंसर सो दैट आई विल स्कोर at least half mark extra than all other people. आपको हर टाइम यही सोचना है कि what different I should write in my answer so that I should score at least half mark extra in this particular examination. अगर हमने ये सोच लिया तो आप सोचो, हर एक क्वेश्चन पेपर में लगभग there are 20 क्वेश्चन, 20 into half mark extra, एक पेपर का 10 मार्क आपको सरप्लस में आ गया। ऐसे अगर 4 पेपर का सोच लिया तो 40 पेपर हो गए, 40 मार्क हो गए। ऑप्शनल का 20 ऐड कर लिया, 2 पेपर का 60 हो गया। चलो छोड़ दो, आपको 60 मार्क्स नहीं एक्स्ट्रा आता है, एटलीस्ट अगर आपको 25 मार्क भी एक्स्ट्रा आ गया, देन यू विल बी ऑल इंडिया रैंक 1। इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव्स, दैट्स समवन हैज सेड दैट स्टेटमेंट वेरी राइटली, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो ये सोचते हैं कि मैंने अलग से क्या लिखना है, मैंने डिफरेंटली क्या लिखना है, मैंने लैंग्वेज पे क्या काम करना है, मैंने क्या करना है, ये सब उन्होंने सोच के रखा है। इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक कि व्हाट डिफरेंट आई शुड राइट सो दैट आई शुड स्कोर, आई विल गेट मोर नंबर ऑफ मार्क्स। सो आई विल रिपीट दिस पॉइंट वंस अगेन। यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना है, वी आर थिंकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज सिलेबस का डिकोडिंग करना है, सिलेबस का इंटरनलाइजेशन करना है। मतलब सिलेबस के हर एक पॉइंट पे अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए इसका, और ये सारा कंसेप्ट अपने को अपने खुद के लैंग्वेज में समझना चाहिए। अपना ओन लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे जरूरी है। और इस सिलेबस इंटरनलाइजेशन के लिए वी हैव टू गो फॉर दीज 7 नोटबुक्स। अपने को ये 7 नोटबुक्स चाहिए जो अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है। 7 नोटबुक्स, 7 नोटबुक में हर एक वर्ड के लिए एक पेज, देयर इज नो लिमिटेशन। और ये करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, नो लिमिटेशन, ये इंटरेस्ट लेके करो। These 7 notebooks will act as a Bible for your preparation. ऐसा हो सकता है कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस इंटरनलाइजेशन करने के लिए 6 या 7 महीने लगने दो। बेसिकली what you are going to achieve by completing the syllabus if you do not understand any word of syllabus. बराबर। So remember this point, completion of syllabus is not our target. अपना टारगेट है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, यूजिंग दैट सिलेबस एंड कंसेप्ट टू राइट गुड आंसर एंड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। 90% of people who prepare for civil services, they are more concerned about completion of the syllabus rather than understanding of the syllabus. अपना focus should be very clear, it should be very professional, that I don't want to complete the syllabus. My main purpose is just only to understand the syllabus and use this syllabus point in a manner so that I should score maximum marks. तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, you have to focus on syllabus का internalization. बराबर है? No, value addition, which I told you, every time you have to think what different I can write in my answer so that I should score maximum mark. ये आपको सोचना है। उसके बाद सर रीडिंग कहाँ से शुरू करूं? Now I told you 2 important things to read. One is the Hindu newspaper, second is Yojana magazine. Now third thing, you should start reading either NCERT or state board books or ICSE books. Yes,
ICSE books are very standard books. I would, if you ask me, sir, which books I should read preferably, I would give you preference that you should read ICSE books. They are more standard as compared to your state board syllabus or as compared to your NCERT syllabus. If you ask me, I would suggest you should go for reading of ICSE syllabus. इसमें से which subjects you should read? For geography, you should go for 6th to 12th. For again history, 6th to 12th. Civics, 6th to 10th. Then political science, 11th and 12th. Economics, 11th and 12th. Then sociology, 11th and 12th. Do not read science. Science आपको नहीं पढ़ना है. Geography, history, civics, polity, economy, society, environment आपको पढ़ना है. Environment science से since 9th to 12th ये सब आपको पढ़ना है. But while reading all these state boards or NCERT or ICSE board books, a first most important instruction, no target. आपको टारगेट बहुत इंटरेस्टेड है, सर ये मैं किताबें कितने दिन में कवर करूं. नो टारगेट. अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द टोन, ट्राई टू सर्च गुड वर्ड्स, ट्राई टू सर्च गुड एग्जांपल्स, ट्राई टू सर्च गुड केस स्टडीज एंड फैक्चुअल डेटा विच यू कैन यूज इन योर आंसर्स. दूसरी चीज, हाउ मेनी टाइम्स आई शुड रीड दीज बुक्स? हाउ मेनी टाइम्स? नो रेस्ट्रिक्शन, कोई जल्दबाजी नहीं है. एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, यू फील कि सर एक बार सफिशिएंट है, सफिशिएंट. ऐसा बिल्कुल मैकेनिकली नहीं है कि सर ये किताबें मैं 3 बार पढ़ूं, 4 बार पढ़ूं, 5 बार पढ़ूं. देयर इज एब्सोल्युटली नो रेस्ट्रिक्शन. ये बात ध्यान में रखना है आपको. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम इज सफिशिएंट फॉर फ्यू पीपल, 2 टाइम इज सफिशिएंट फॉर फ्यू पीपल. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू आर फीलिंग कि सर ये पढ़ने का मुझे सिलेबस के बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ गया है, सो आई विल नॉट रीड दीज थिंग्स. No need to read these things multiple times. तीसरी चीज, should I make notes out of it? Absolutely not. Do not make notes. At least for 6 months. Should I remember these things? बिल्कुल कुछ भी चीजें याद रखने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए. Just read it. दूसरी चीज, should I try to mug up the things? बिल्कुल नहीं. मग अप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है. Just go with the flow of the state board और NCERT. सर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये तीनों भी पढ़ना है क्या? नहीं, तीनों में से any 1 out of 3. Remember, any 1 out of 3 आपको पढ़ना है. तीनों में से कौन सा भी एक ही चीज आपको पढ़ना है. सारा का सारा चीज आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. It is not expected from your side. Just try to read it. बराबर है. 6 महीने लगने चाहिए, आराम से पढ़ो, 6 महीने में पढ़ो. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रक्स ऑफ दीज ऑल स्टेट बोर्ड्स और NCERT और ICSE सिलेबस एंड ट्राई टू गो बियॉन्ड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम सेइंग, दैट यू टू गो फॉर दिस. देन उसके बाद आपने को क्या पढ़ना है? उसके बाद गो फॉर बुक्स ऑफ ज्ञानदीप एकेडमी. बुक्स ऑफ ज्ञानदीप एकेडमी. Many parents when they come for the counseling, I ask them, सर बाहर का कुछ भी परचेस नहीं करना है, बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमारा ही पढ़ना है. तो पेरेंट आस्क सर आपके बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं. हमारे कोई भी बुक में से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा. रादर देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी मटेरियल ऑफ एनी कोचिंग क्लास. यस, materials provided by coaching classes are there to build your base, to give you understanding of the syllabus, to make you aware about the types of question, type of the syllabus, type of the content, and most importantly to give you headway in your preparation is the purpose of the coaching classes, or is the purpose of the content of Jnandeep Academy's books. Basically, when you read entire syllabus from Jnandeep Academy's books, you will get first-hand understanding of the syllabus. Then comes the part of your newspaper analysis. Every day, go for The Hindu Analysis on the YouTube channel of Jnandeep Academy. The Hindu Analysis on the YouTube channel of Jnandeep Academy. Then third thing, try to link these things with the syllabus. Link the syllabus. और चौथी चीज क्या है, तो हर दिन अपने YouTube चैनल पे इन द इवनिंग टाइम 5 to 7
there is program which is known as a Samarpan 2.0. समर्पण 2.0 इज अ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये आपको पढ़ना है, ये आपको गो थ्रू करना है, इसके हिसाब से आपको चलना है। इसमें दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। बराबर है। इसके साथ और एक चीज है कि यू आर गेटिंग ऑल दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। So if you are not getting concept of any topic, if you are not understanding any syllabus point, then go for videos of that particular syllabus. But the most important thing in this particular case is you have to focus on basics. Basics का मतलब है try to build your base, understand the syllabus, understand the question, understand demand of the question, and after that try to write your answers. Clear? So this is the part that I wanted to explain to you, that this should be flow of your preparation. We are going to study every point one by one. I will also explain you what is meaning of internalization, and then we'll work accordingly based on the syllabus preparation. Clear? Now whatever question that you have, you can ask me the question, then we'll stop for the lecture. I will give you my phone number. You can share your name and your batch with me. This is my phone number 9764221999. Preferred time for calling is in the morning 10:30 to 5:30 in the evening. I generally do not call back to those students whose number is not saved with me. So please share your name and name of your batch with me so that I can call you back. Right? Okay, we'll stop here. We'll keep meeting for the lectures to come. So please share your number with my phone number. We'll be meeting soon. Thank you. यूपीएसचं प्रिपरेशन इंग्लिश मधनं करत असताना इंग्लिश मधल्या नोट्स, इंग्लिश मधले माइंड मॅप्स, इंग्लिश मधली टीचिंग, इंग्लिश मधल्या पीडीएफ, पीपीटी या सगळ्याच्या सगळ्यात ते सुद्धा ऑनलाईन तुम्हाला मिळणार आहे ज्ञानदीपच्या यूपीएससी इंग्लिश मीडियमच्या बॅचमध्ये। ज्ञानदीपची इंग्लिश मीडियमची बॅच सुरू होती 16 जूनला। ही बॅच लाईव्ह कम रेकॉर्डेड असेल, म्हणजे जे तुम्हाला शिकवलंय हे लाईव्ह टीचिंग असेल आणि यासोबत जे काही लाईव्ह लेक्चर होईल, जर तुम्ही हे पाहू शकला नाही तर लगेचच्या लगेच पुढच्या 4 ते 5 तासामध्ये हे लेक्चर त्या ऍपवरती रेकॉर्डेड स्वरूपात तुम्हाला मिळणार आहे। मित्रांनो, ही बॅचची फीस आम्ही कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। यूपीएससी इंग्लिश मीडियमच्या बॅचची फीस आहे फक्त 60,000 रुपये। ही फीस तुम्ही 5 टप्प्यांमध्ये, म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 12,000 असं 5 टप्प्यांमध्ये तुम्ही ही फीस भरू शकता। तुम्हाला याचा नक्की फायदा होणार आहे। महत्वाची गोष्ट काय आहे तर या ऍपमध्ये, या कोर्समध्ये आम्ही कोणतेही व्ह्यूजचं लिमिटेशन टाकलेलं नाहीये। व्ह्यूजचं लिमिटेशन नाहीये, पण बेसिक गोष्ट अशी आहे तुम्हाला फोन नंबर किंवा तुमचं डिव्हाइस चेंज करता येणार नाही, मात्र व्ह्यूज तुम्हाला अनलिमिटेड आहेत आणि याचा ऍक्सेस तुम्हाला कम्प्लिटली 2 वर्ष असणार आहे। या बॅचचा नक्की फायदा घ्या। अत्यंत माफक फीस मधली बॅच आहे, ते पण यूपीएससीच्या एक्सपर्ट फॅकल्टीज तुम्हाला शिकवणार आहेत। सो तुम्हाला सर्वांचं ज्ञानदीपच्या यूपीएससी प्लॅटफॉर्मवर मनापासून स्वागत आहे। धन्यवाद।